Kota is one of the 25 Lok Sabha constituencies in Rajasthan. It's recognized as a stronghold of the Bharatiya Janata Party. The constituency is currently composed of 8 Vidhan Sabha segments. It has a population of 1.5 million. 60.31% of the population lives in urban areas. 39.69% of the population is rural. Scheduled castes make up 12.21% of the population. Kota is a Hindu majority constituency with about 85.15% Hindu population and 12.51% Muslim population. In 2019, 1.2 million qualified to vote, of which 69.84% turned up to vote. Located on the banks of the Chambal River, Kota is amongst the largest cities in Rajasthan. It's known as the coaching hub for JEE and NEET aspirants. Kota is also a popular tourist destination with many riverfront parks, green spaces and museums. The city of Kota is famous for its distinctive style of paintings, palaces, museums and places of worship. The city is known for gold jewelry, Doria saris, silk saris and the famous Kota stone. The history of Kota dates to the 12th century when Rao Deva conquered the territory and founded Haroti. The independent Rajput state of Kota was carved out of Bundi in 1631. The kingdom of Kota had a turbulent history as it was raided by various Mughal rulers, Maharajas of Jaipur and even the Maratha warlords. Om Birla emerged victorious in the 2019 Lok Sabha elections by a margin of 2,79,677 votes. The runner-up was Congress's Ram Narayan Meena. He had to contend with 38.07% of the votes. The BJP has once again fielded their star candidate Om Birla from the seat. The Congress has fielded Prahlad Gunjal. He defected from the BJP and joined the Congress in March 2024. He hails from the Gujar community. Born in 1962, Om Birla is an Indian lawmaker and social worker, serving as the 17th Lok Sabha Speaker since 2019. He has served as Lok Sabha MP from Kota Bundi in Rajasthan since 2014. He was an MLA from the Kota South Assembly constituency from 2003 to 2014. He joined the Bharatiya Janata Yuva Morcha, the BJP's youth wing, and became involved in student politics. He went on to become the organization's national vice president. A mega rally has been organized by the BJP. Its star candidate Om Birla will be arriving any time now. Thousands of people have gathered to see their leader. Union Minister Amit Shah, flanked by Om Birla, arrives at the location. He is here to campaign for the Lok Sabha Speaker. Om Birla is now addressing the people. He thanks the people of Kota for having voted him to power since 2003. Amidst cheers and sloganeering, Amit Shah addresses the crowd. He targets the Congress, accusing it of being embroiled in scams to the tune of 12 lakh crore rupees. एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। In Kota, there's a lot of euphoria here because Home Minister Amit Shah has, of course, come over here
As a star campaigner for Om Birla, Home Minister Amit Shah, of course, praising Om Birla's work over the last 5 years and also his term as Speaker, and of course hitting out at Rahul Gandhi. Meanwhile, saying on one side there is of course Narendra Modi, who's never taken a day off, and on the other hand you have Rahul Gandhi, who perpetually takes vacation and is a missile who has failed to launch multiple times by the Congress party. You can see over here, the crowd is responding pretty positively to the Home Minister. There are women, of course, here as well who have arrived here in big, as you can see, of course, in big margins. Women over here, they are enjoying what Amit Shah, of course, is saying. Kota is seeing a battle of Om Birla with BJP rebel who's contesting on a Congress ticket, Prahlad Gunjal. And of course, it is expected that the push from a star campaigner like Amit Shah will help Mr. Birla win over the town, which is of course known for providing studies and tuition for a lot of our country's young. The crowd is ecstatic. By the looks of it, the BJP has full support of the people. हम इस वक्त पहुंचे हैं कोटा राजस्थान में। हमारे संग जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा के वर्तमान सांसद और दोबारा मैदान में ओम बिरला जी। बिरला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। महावीर जयंती का आज मौका है। जैन समाज प्रति हमने आपका भी स्नेह देखा, उनका भी स्नेह देखा आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे आज इस फंक्शन के बारे में और आज इस ओकेजन के बारे में? महावीर जयंती की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर भगवान के विचार, सिद्धांत, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताए। जियो और जीने का सिद्धांत, जो उनका सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है और पूरे विश्व में शांति रहे, अहिंसा रहे, सत्य के मार्ग पर चले, अपरिग्रह। ये भगवान महावीर के विचार थे और ये विचार आज समाज में आवश्यकता है कि इन विचारों पे समाज चले, ताकि हम जीवन जीने की राह और दूसरों को जियो जीने दो की राह को पूरा कर सकें। आपने ये भी कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है। आपने भी बिरला जी क्या संकल्प लिया है? आगे 5 सालों का विजन क्या है आपका कोटा के लिए? कोटा बूंदी के एक बेटे भाई के रूप में मैंने काम किया है और हमने इस कोटा बूंदी को विकास के नए आयाम पर ले गए हैं। केंद्र की जितनी योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसी योजनाएं जो कभी आज तक नहीं आई, और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुराने रहे हैं उनसे आकलन कर लें, उनकी तुलना कर लें और इस समय की तुलना कर लें। मुझे लगता है कि केंद्र की सारी योजनाएं, चाहे हाईवे हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की लो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे माडा योजना के तहत 250 करोड़ हो, चाहे अमृत सरोवर के 100 करोड़ रुपए हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी एक लंबी परिस्थिति है। इन लंबे कामों को केंद्र से किसी तरीके से लाते हैं। जो केंद्र की सारी योजना है उन सारी योजनाओं लाए। 14 जिलों का पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर है। एयरपोर्ट का काम चल रहा है, DPR बनते एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। जो कांग्रेस सरकार ने 8 महीने एयरपोर्ट में देरी की, उसकी जिम्मेदारी वह है। और जैसे ही मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए, तुरंत उन्होंने पैसे जमा करा दिए। एयरपोर्ट की गति बढ़ गई है। जैसे DPR बढ़ जाएगा वैसे हो जाएगा। कोटा के रेलवे स्टेशन, डकनिया रेलवे स्टेशन बरसों से था, आज कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन पे 500 करोड़ का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। कोरोना के इस आपत्ति संकट के समय मैं यही कहने वाला था बिरला साहब, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं लगातार लोगों से। कल गृह मंत्री जी ने भी जिक्र किया था कोरोना का। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव है। इतने कठिन वक्त में आप कितना कुछ कर पाए यहाँ के लोगों के लिए और बाहर से भी जो लोग, जो स्टूडेंट्स थे यहाँ खास करके, उनके लिए? वैश्विक कोरोना संकट महामारी बहुत हमारे लिए गंभीर थी और मुझे पता है वैश्विक कोरोना महामारी से चाहे गाँव में चाहे शहर में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। कांग्रेस ने पूरे 5 साल में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया था। तो जब ऑक्सीजन की कमी आई, दवाइयों की कमी आई, तो हमने केंद्र सरकार से बात कर अन्य सरकारी और निजी एजेंसियों से बात कर इस कोटा बूंदी संसदीय नहीं, राजस्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं आती, दवाइयों की कमी नहीं आती, और कोरोना योद्धा बनाकर
हमने कार्यकर्ताओं को हर गांव में दवायां, ऑक्सीमीटर, जगह जगह एम्बुलेंस करने और उसके साथ कंसंट्रेटर, तमाम जगह, मतलब मैं कहता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम की तरह सारे लोग एक परिवार की तरह लगे और हमने कोरोना की चुनौतियों से निपटा। मुझे पता है उस समय एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि हमारे लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, उनके घर वाले चिंतित थे, आवागमन का रास्ता बंद था। मैंने गृह मंत्री आग्रह किया, उन्होंने कहा ठीक है रास्ता मूवमेंट बंद है, तो भी गृह मंत्री ने पहली बार देश में कोई मूवमेंट शुरू हुआ कोटा के कोचिंग के बच्चों का, तो पहली बार कोटा से शुरू हुआ। कोरोना के समय हर लोगों ने जिस तरीके का सहयोग किया, आपस में मिलकर किया, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो नेता कहते हैं 10 साल में क्या काम किया, वो बताए 10 साल में उन्होंने क्या किया। वो 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया बता दें। कभी कोरोना के संकट में, कभी लोगों के अभाव में, सामाजिक कल्याण की कोई योजना में, गरीब के इलाज में लिए, या किसी माँ की सुपोषित माँ अभियान के रूप में, या वो छप्पर बैठा गरीब व्यक्ति वो इंतजार करता धूप में, उसके लिए कभी भी कोई भी एक काम बता दें, एक काम बता दे सामाजिक योजनाओं का, एक काम किसी ने किया है क्या? दुख होता है कि आपके ही एक साथी बागी होकर आ गए हैं मैदान में आपके ही खिलाफ। देखिए, कोई लोगों को चुनाव लड़ने ही, युद्ध लड़ना ही चुनाव लड़ना ही है, चाहे किसी दल से लड़े, चाहे इस दल से लड़े, चाहे उस दल से लड़े। चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ना है, किसी भी दल से लड़ना है। विचारधारा उनकी कोई विचारधारा नहीं है, केवल मुझे चुनाव लड़ना है, किसी दल पे लड़ना है। और जिस तरीके जाति के जहर घोल रहे हैं वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। जाति के जहरों से चुनाव नहीं जीता जाता। क्योंकि कांग्रेस जाति का कार्ड ही खेल रही है। वह कह रहे हैं कि ये जाति उनके साथ है, ये जाति उनके साथ है। क्षत्रिय जो हैं बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। क्या आपको लगता है ये जातीय समीकरण और जो आरएलपी को वो ले आए हैं और आदिवासी पार्टी को ले आए हैं, लेफ्ट को ले आए हैं, उससे फर्क पड़ेगा आपकी सीट में नहीं, राजस्थान पर? भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाति के नहीं, संपूर्ण समाज की पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है जाति 4 है, किसान, युवा, महिला और गरीब, ये हमारी जातियां हैं। गृह मंत्री खुद आपके लिए आए यहाँ, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ा है आपके चुनाव पर ओम जी? अब मैं था कल सभा में। गृह मंत्री जी हमारे नेता हैं और गृह मंत्री जी ने देश में वो काम किए हैं जो ऐतिहासिक हैं, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, सी हो, जो बरसों से अटके लटके थे वो गृह मंत्री जी ने विधेयक ला कर किए। इसलिए गृह मंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देश के अंदर है और उनका काम करने का तरीका हमेशा देश और राष्ट्र हित में रहा है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। आखिर में मैं पूछूंगा, आप अध्यक्ष बने, ये जो लोकसभा अध्यक्ष भी आपको बनाना, क्या आपको लगता है इससे भी गर्व हुआ है कोटा वासियों को कि उन्हीं में से एक लोकसभा का अध्यक्ष बना है? निश्चित रूप से कोटा में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व तो मिला है। ये यहाँ की जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के प्यार से सांसद बना, लोकसभा स्पीकर बना। Om Birla has other engagements to attend. He's on his way to a Mahavir Jayanti celebration. He stops to meet the party workers. Many have gathered to get clicked with him. Through the campaign, candidates attempt to connect with as many communities, as many people as they can in their constituency. Today is Mahavir Jayanti, and as you can see, Om Birla, Lok Sabha Speaker, of course, and the MP of Kota has come for a special Jain community function on the occasion of Mahavir Jayanti. Of course, is paying respects to the Jain Munis on the stage. Also, of course, celebrating Mahavir Jayanti with the people of Kota. The Jain community, as you can see, has come in large numbers. Over here. I'll request my journalist to show the public over here, who's of course gathered from all over Kota and Bundi on the occasion of Mahavir Jayanti, of course, and connecting with them, of course. Om Birla is present at this particular function as well. The priests welcome the leader. They present him with a turban and shawls and garland him. He is now going also to meet with further people. As you can also see, there is on the occasion of Mahavir Jayanti, of course, the religious function which is happening over here. धार्मिक आयोजन जो है वो इस तरफ है और इस तरफ 2 शिविर लगाए गए हैं. Obviously, Mahavir Jayanti is a day of helping the poor and downtrodden as well. So you can see over there's a Vishal Divyang Shivir that has been set up, and there's also another Vishal Raktdan Shivir which has been set up in these 2 booths as well.
So clearly, of course, Om Birla is confident of his win. We'll try and speak to some people over here as well. Sir, कोटा वासी हैं आप. ये जो जंग इस वक्त चल रहा है लोकसभा चुनाव का, इस पर आप क्या कहेंगे? पल्ला किसका भारी है और विषय क्या हैं? पल्ला भाई साहब ओम जी का भारी है, क्योंकि जो दूसरे जो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं उनका कोई मोरल नहीं है. पार्टी बदल के जिन एकदम कांग्रेस के अंदर आके और वो अपना वो कह रहे हैं, और जितनी लोकप्रियता ओम बिरला जी की है उतनी उनकी किसी भी हालत में नहीं है. यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं. मैम, आप यहाँ आप आए हैं फंक्शन के लिए खास. यहाँ आज खास दिन है महावीर जयंती का, मगर एक और महापर्व चल रहा है चुनाव का. तो चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव के बारे में मेरा कोई एक विषय जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, महिला सुरक्षा या फिर एजुकेशन या विकास, आपके लिए अहम मुद्दा क्या है? स्पेशली महिला सुरक्षा के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो चल रहा है, क्योंकि इसको लेकर के कई लोग मतलब अपने रिव्यूज़ जो दे रहे हैं वो मतलब सब लोगों को ऐसा रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. आपसे पूछेंगे, आप युवा हैं, मेन इशू आपके लिए क्या है इस बार चुनाव में? एक तो रिलीजन, मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि सारे रिलीजन सेम होने चाहिए. हम लोग जैन धर्म है, हम अपने धर्म को बढ़ाते हैं, आप सब अपने धर्म को बढ़ाएं, हम सब मिलजुल के रहेंगे, वही अच्छा है. डेवलपमेंट के लिए यही कहूँगा, रोड बीच में खुदी हुई है, बस वो सही करवा दो. बाकी धारीवाल जी और ओम बिरला जी दोनों ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कराया कोटा में. देखिए आप, ये कांग्रेस नेता का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के नेता का नाम ले रहे बोला ना, मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, और दोनों ही हैं. वोट डालेंगे मगर आप? वोट नहीं, मैं अभी 17 साल का हूँ, वोट नहीं डालूंगा, पर दोनों ही मेरे ताऊजी हैं. मैं दोनों अंडर एज हो आप, मगर फिर भी काफ़ी जागरूक हो. दैट्स अ गुड थिंग. It's a battle of prestige for the two-time Lok Sabha MP. Can he continue his winning streak? Well, we will soon find out. That was the NewsX Road Stop in Kota. Keep watching our non-stop ground series.